Hello guys, let's start again today with the analysis of Economics Time newspaper. So guys, the first news is about the company Hexaware Technologies Limited, Private Limited, sorry. And here the news is about this thing that the three private equity firms are in the race to take the share of the of the Hexaware Technologies, and the three companies that are involved in this are: the first is the Carlyle, which is the about which the most of the news is about which Carlyle only, and the second company is Bain Capital, and the third company is Teleperformance. Okay guys, so इन तीन कंपनियों ने बिड्स लगाई हैं अपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्होंने बिड लगाई है और उन्होंने ख़रीदना किससे है ये शेयर? इन्होंने ख़रीदना है बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया, ये कंपनी है, इनसे इन्होंने शेयर खरीदना है। मतलब जो भी कंपनी को बिड मतलब ये ऑफ़र होगी तो वो इस कंपनी से BPEA कंपनी से खरीद लेंगे उसका शेयर। एंड BPEA का इन्होंने बताया, BPEA acquired company in 2013 for 2850 crore and took it private in 2020 and spent 5400 crore additionally. So this is all about the BPA ownership in the company and future ready is Hexaware ownership. Hexaware की यहाँ पे ownership बताई है इन्होंने। Hexaware 91.6% is Hexa Technology Global IT Solutions, and BPA is a holding company of this, and the rest is a minority shareholders. Means they are small shareholders. Like sometimes if we invest in the stock market in this company, then we will be called the minority shareholders of this company. So they have told that the key markets of this Hexaware technology is North America, Europe and Asia. North America accounts for around 70% of the business of Hexaware technologies. Okay guys, and here I have discussed something about Hexaware technologies, that Hexaware technology is a company, IT and BPO. BPO means business process outsourcing company, and IT means information technology, sorry. It was founded in 1990, and its headquarters, we can say that, is in Navi Mumbai. Okay guys, this was about Hexaware, and yes, if they are also written that if accepted, deal would be largest PE buyout in India outside of infrastructure. Means keeping the infrastructure segment aside and among the other segments of the various businesses. For example, इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर में जो भी बिजनेसेस हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, कह सकते हैं हम, तो इनमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वाला ये प्राइवेट इक्विटी बाई आउट होगा इंडिया के अंदर, अगर ये वो हो जाता है, एक तरह से एक्सेप्ट हो जाती है प्रपोजल। ठीक है गाइज, एंड इसमें लिखा है कार्लाइल इज आल्सो नेगोशिएटिंग विद द होस्ट ऑफ बैंक्स। इन्होंने ये सब बैंक्स वो वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो उनके बारे में बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ इनके साथ ये नेगोशिएट कर लिया कार्लाइल, जो इन्वेस्ट करना चाहती है $3 बिलियन, जो है 22,500 करोड़ के आसपास बनती है जो इंडिया की रुपीज़ में। तो इनकी इन बैंक्स के साथ वो चर्चा चल रही है एक तरह से। मतलब ये HSBC, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज, नोमुरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड BNP पारिबस, ये these all are the investment banks which mainly work in the finance area, and yes, mainly finance area, and is mainly work for the big corporates only, because they are meant for these only, and they earn also too much money from these companies. And if you guys want to know the mainly about these investment banks, then I can suggest you one documentary kind of movie whose name is, one second guys, sorry guys, I couldn't remember that movie name, but I will be telling it in the description. Okay guys, description of this video. Okay guys, so in that movie, basically there is a person, or we can say the society or a group of person who have studied or conducted a research on the 2008 economic depression, which took too much of the, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा बंदों का बहुत सारा नुकसान हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। तो उसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया है कि शायद उसका नाम है द इनसाइड स्टोरी करके, शायद है कि नहीं, हाँ ऐसे एक इनसाइड से नाम है, मैं आपको बता दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसमें बेसिकली ये बताया कि ये कैसे इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इतने बड़े बड़े, हमें लगता है ये बहुत पैसा कमाते हैं, और क्योंकि अगर इनमें आप जॉब भी लगती है ना आपकी, तो आपको सैलरी का पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो भी मतलब कंपनीज बेसिकली जो इंडिया के अंदर आपको, जैसे अगर HUL जैसी कंपनी, यार अगर इंडिया की रिलायंस में जाते हो, अगर एयरटेल में जाते हो, किसी ऐसी कंपनी में अगर आपकी जॉब लगती है, तो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा पैकेज मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर। वो बेसिकली है क्योंकि ये कमाई बहुत, इनकी मतलब अर्निंग बहुत होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ अर्निंग
and basically there is too much fraud involved in these kind of companies that one cannot easily understand when the person, either the person who is working there or the person who wants to work there, the person cannot imagine how far the fraud system is being used in these kind of companies. So if once you see the story, then you will once you see the movie, then you will basically come to know the basic thing about how these investment banks work and how these banks defraud the whole government of the country. Okay, this was all about this. And yes, they are trying to this company is negotiating with host of banks to raise 1.2 billion dollar in bridge financing. Bridge financing is basically a short term financing. I have written the meaning of bridge financing. Wait one second. No, okay, sorry. Bridge financing is basically the temporary investment for मीन जैसे कंपनी को समझ लो काफ़ी ज़्यादा पैसा जैसे इन्होंने लिया है ना, 1.2 बिलियन डॉलर है, इनको चाहिए इतना पैसा, पर ऐसे एकदम से कोई इनको सैंक्शन करके तो देने वाला नहीं इतना जल्दी, इतना ज़्यादा अमाउंट का पैसा। तो ये शॉर्ट टर्म एक तरह से ब्रिज फाइनेंसिंग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से, मतलब जैसे ब्रिज होता है ना, किसी को मतलब दो जगह को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, ऐसे ही एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन की, मतलब लॉन्ग टर्म लोन की प्रोसेस के बीच में शॉर्ट टर्म लोन एक तरह से होता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, बेसिकली ये आइडिया आपको दे दिया ब्रिज फाइनेंसिंग का। सो गाइस, let's move to the next topic, and then here is a news about a Vodafone Idea, and here is written that VI lenders seek additional collateral and higher interest. Means as we all know that the Vodafone Idea is in too much debt on, and we can basically go to the fourth page, and where I have also marked about this company, and मतलब यहाँ पे फिगर भी दी गई है कितना इनका डेट रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग यूटिलाइज फैसिलिटीज अबाउट 47,000 करोड़। मीन्स जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि 22,500 करोड़ जो रेज़ करना चाहती है, मतलब उस कंपनी जो ऊपर हमने पढ़ा इन्वेस्ट करना चाहती है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर, कैटलिस्ट कंपनी है कोई, तो वो 22,500 था। पर इनका जैसे एक तरह से देखा जाए, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, इसमें मतलब कोई रिलेशन नहीं है न्यूज़ का। मीन्स फॉर एग्जांपल हियर द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ वोडाफोन आइडिया फ्रॉम lenders is around 47,000 crore from banks, NBFCs and mutual funds over and above its area to the DOT means डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मतलब जितना इन्होंने DOT को पैसा देना उससे कई गुना मतलब वो अलग है, सॉरी वो अलग है, 47,000 करोड़ अलग है अमाउंट। सो यू कैन assume that how much that is in this company, and also this company is pleading the government to reduce its debts or help it in financially, otherwise the VI can't run in the future, and it will have to shut its operation in the India. So they have also written that the troubled telco here they are referring to the Vodafone Idea only. The troubled telco is also in talks with lenders to provide additional bank guarantees, additional BGs worth rupees 980 crores so that it can avail of moratorium in spectrum payments, said another bank official. Okay, so they are basically wanting that their moratorium payment on spectrum should be delayed, and for this the DOT is requiring the bank guarantees, and for which the Vodafone Idea is pleading banks to give guarantees to them so that this payment of 980 crores could be delayed for some months or a few years, we can say. So this was working only when it is the company was working on a relief package which would likely include a moratorium on payment. Yes, moratorium basically means, I have written that moratorium means temporary delay. Okay guys, temporary delay. Okay, so they are also there. After that, VI said to lenders to give BGs with bank guarantees, and so the lenders are saying that converting debt to equity in telco was an option for them. Means डेट मतलब जितना डेट वोडाफोन ने इनको देना है, मतलब पे करना है लेंडर्स को, जितना पैसा अभी उनका रहता है पे करना एक तरह से लोन्स के टाइप पे, तो लेंडर्स कह रहे हैं कि उनका अगर वो डेट अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो फिर भी वो कंसिडरेबल सिचुएशन है, मतलब उस सिचुएशन में फिर भी वो ऐसे मतलब सौदा कर सकते हैं, एक तरह से कम कर सकते हैं कुछ अमाउंट, ऐसे कुछ मतलब बैंक गारंटी दे सकते हैं। एंड अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो VI अगर नहीं सेव किया गवर्नमेंट ने, मतलब वोडाफोन इंडिया को नहीं बचा पाई, तो ये एक तरह से थर्ड ऑपरेटर बन जाएगा टू गो अंडर मतलब एक तरह से बंद हो जाएगा आफ्टर रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड एयरसेल। रिलायंस कम्युनिकेशन वी ऑल नो, शायद उसकी अनिल अंबानी है उनकी है शायद ये फॉर्म, या पता नहीं किनकी है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो एयरसेल भी ऐसे ही था, वो भी बंद हो गई थी, तो ऐसे ये थर्ड कंपनी हो जाएगी अगर इसको ना किया जाए एक तरह से। एंड SBI का बताया, SBI फॉर इन इंस्टांस हैज एन एक्सपोजर ऑफ अबाउट 11,000 करोड़ टेलको, मतलब
SBI ने 11,000 करोड़ के आसपास लोन दे रखा है वोडाफोन आइडिया को, मतलब वोडाफोन आइडिया इतना भी पे करना है इनको। तो गाइस दिस वाज दिस एंड लेट्स मूव टू लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट बेसिक फर्स्ट पेज. Here is it written that Dunzo Tata talks stuck in deal on deal. And Dunzo, if you guys don't know, I also googled it, and it is a company whose main business is to grocery delivery system, grocery, or we can say a food delivery system. Yes, they are engaged in both the kind of delivery system, grocery and food delivery system. And डुनजो के अंदर टाटा ने इन्वेस्ट करने का सोचा है, बट इनकी डील एक तरह से बीच में रुक गई है। तो वो इसलिए क्योंकि जो इनका जो वो है ना, या एक तरह से हेड है, जो उन्होंने कह दिया है कि हम इन्वेस्ट तो करने देंगे आपको, आप इन्वेस्ट मतलब एक तरह से बड़ा शेयर ले लो, पर हम आपको मेजोरिटी शेयर नहीं देंगे, क्योंकि मेजोरिटी शेयर से एक तरह से यही होता है, मेजोरिटी शेयर का नुकसान कि आपके हाथों से वोटिंग पावर चली जाती है। एंड अगर आपके हाथों से वोटिंग पावर चली गई फिर तो मतलब जो इन्वेस्टर है वो तो कोई भी डिसीजन लेके आपकी कंपनी को पूरा कंट्रोल कर सकता है। बिकॉज जब भी जनरल मीटिंग्स वगैरह होती है कंपनीज की, तो उसमें वोट्स के बेसिस पे रेजोल्यूशंस पास होते हैं। वो रेजोल्यूशन अगर पास उन्होंने कर लिए फिर तो ओनर का कोई वजूद ही नहीं रहा ना, ओनर सिर्फ नाम से ही है। तो ओनर के पास अगर शेयर होल्डिंग ही नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा ना। बस इनके ऐसे एक तरह से इनकी डील बीच में स्टक हो चुकी है। तो बस यही लिखा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना, हाइपर लोकल स्टार्टअप डज नॉट वांट टू गिव मेजोरिटी कंट्रोल। ठीक है गाइस, बेसिकली इसमें यही था, इसका क्रक्स बता दिया आपको एक तरह से। यहाँ पे बताया है रेट्रो टैक्स के बारे में बताया है, जो कंपनीज टू गिव गवर्नमेंट गिव अंडरटेकिंग ऑन सेटलमेंट। इसमें यह बताया है कि जैसे अभी जो इन्होंने रेट्रो टैक्स को अबॉलिश कर दिया है ना एक तरह से, तो उसमें ये है कि वो इस कंडीशन पे अबॉलिश किया है कि कंपनीज गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग देंगी कि वो गवर्नमेंट को बाद में स्यू नहीं करेंगे किसी इंटरेस्ट वगैरह के लिए। तो मतलब सिर्फ कंपनी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने जो इनसे पैसे ले रखे हैं रेट्रो टैक्स के अंदर, जैसे काफ़ी सारा हज़ारों करोड़ के रुपए हैं तो वो कह रही है कि गवर्नमेंट कह रही है सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे, मतलब उस पर जो ब्याज जुड़ा है वो हम नहीं वापस करेंगे, क्योंकि इतना पैसा कहाँ होगा गवर्नमेंट के पास, होगा भी तो क्यों नहीं देना चाहते, तो उनकी मर्जी है। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट पैड्स अप अगेंस्ट फ्यूचर क्लेम्स। मीन गवर्नमेंट जैसे पैड होते हैं ना, पैड सेफ्टी के लिए होते हैं, ऐसे लिखा है गवर्नमेंट पैड। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से सेफ्टी कर ली है अपनी फ्यूचर क्लेम्स के अगेंस्ट, एक तरह से वो मांग के अंडरटेकिंग मांग कर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लुक्स टू इंश्योर अदर स्टेक होल्डर्स डोंट सीक डैमेजेस एट ग्लोबल फॉरम। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो जिन कंपनीज के क्लेम गवर्नमेंट ने देने हैं, बस वही कंपनीज अगर कोई क्लेम वापस करना चाहते, कोई मतलब एक तरह से ग्लोबल फॉरम में भी अगर अपील करना चाहती हैं तो वही कर सकती है। मतलब और कोई अगर एंटिटी आगे कहे कि हम अपील करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि उन्होंने ऐसे डैमेजेस दिए, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है। तो बस इसमें इन्होंने लिखा है इन फॉर एग्जांपल इन द कार केस फॉर इंस्टांस द सेटलमेंट अमाउंट इज लाइकली टू बी अबाउट 8,000 करोड़ well short of $1.7 billion, which is around 12,600 crores, and that is the amount that Khan company has claimed from the government. This is because that I have highlighted in yellow color. This is because of the reason that the government is not in the government पे नहीं करना चाहती इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ऑन द अदर हैंड द कान कंपनी इज wanting the interest payment also. So this is a basic difference because of the amount that the amounts are showing us. यहाँ पे लिखा है तालिबान करदाई डिस्कस गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड दे सेड दे विल सून फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट। वैसे तो ये उसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में। एंड यहाँ पे लिखा है तालिबान सील्स इंडिया ट्रेड रूट वाया पाक यहाँ पे लिखा है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो FIEO है, उन्होंने बताया कि मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि तालिबान हैज स्टॉप्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद इंडिया एंड सील्ड 2 टर्मिनल्स एंड क्रूशियल फॉर लैंड ट्रेड एट द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। हो गई। सो इससे यहाँ पे बेसिकली हमें ये इंडिया को यही नुकसान है कि इंडिया के अंदर जो ड्राई फ्रूट है इसके प्राइसेस अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेनली हमने जैसे पुराने न्यूज़ में भी देखा था, 1-2 दिन पहले आई थी न्यूज़ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ने बताया था कि इंडिया क्या इंपोर्ट करती है एंड क्या एक्सपोर्ट करती है अफगानिस्तान को। तो उसने बेसिकली यही है कि मतलब एक तरह से अब ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से इंडिया एक तरह से इंपोर्ट करता था काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट से बादाम से होगी, काजू ऐसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है US फ्रीजेस $9.5 बिलियन अफगान बैंक एसेट्स। तो इन्होंने बेसिकली लिखा है ये इसलिए किया है टू कर्ब द तालिबान लेड गवर्नमेंट्स एक्सेस टू मनी। मतलब ये चाहते हैं कि तालिबान के पास पैसा कम से कम रहे, तो उन्होंने बस उनके अकाउंट सीज कर दिए हैं। इसमें इस पेज पे यही था, कई इस पे तो आगे इन्होंने ऐड दिया है कि बस फिर आगे तो ये उसके बाद में आया प्योर पॉलिटिक्स आ जाता है। तो उसके बाद में CM मोदी की एक न्यूज़ दी है इन्होंने, PM मोदी चेयर सेकंड CCS मीट इन 24 आवर्स। ये हमने बस ये
कल भी आई थी एक न्यूज़ इसके बारे में कि उन्होंने इसी से मीट किया, तो उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि 24 आवर के अंदर ही दूसरी CSCS मीट भी मोदी ने ऑर्गेनाइज कर लिया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCS की फुल फॉर्म है गाइस। तो बस यहाँ पे इस पेज पे तो भाई पॉलिटिक्स का ही है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे गाइस। सो नेक्स्ट पेज पे पॉलिटिक्स है, पर इसमें हम एक न्यूज़ पढ़ लेंगे जो मुझे अच्छी लगी, थोड़ी सी न्यूज़ एक तरह से नॉलेज वाली है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि नेवीज़ P-751 सबमरीन प्रोजेक्ट, इसके बारे में न्यूज़ है कि नेवी का एक है कि सबमरीन प्रोजेक्ट है कि इन्होंने 6 सबमरीन ऐसे बनानी है जो पानी के अंदर रह सके काफ़ी टाइम तक। मतलब इन्होंने एक ऐसी बनानी चाहते हैं सबमरीन्स जो जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम हो, जिसके जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जिससे जो सबमरीन्स है ना वो सबमर्ज रह सकती हैं 2 हफ्तों तक के लिए, मतलब अराउंड 14 डेज़ के लिए दे कैन बी सबमर्ज इन द सी ओनली एज अगेंस्ट द 2 to 3 days ऑफ अंडर वाटर एंड्योरेंस ऑफ द करंट सबमरीन्स। ठीक है गाइस, मतलब जो अभी सबमरीन्स हैं उनमें सिर्फ 2 से 3 दिन का अंडर वाटर स्टे हो सकता है, मतलब उसके ज़्यादा रह नहीं सकती वो पानी के नीचे। तो बस इसमें यह बताया कि जो गवर्नमेंट की जो जर्मनी की TKMS इनके फुल फॉर्म भी बताइए यहाँ पे, जर्मनीज थाइसन ग्रुप मैरीन सिस्टम TKMS, इन्होंने मतलब अपना हाथ पीछे कर लिया एक तरह से, ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अब, क्योंकि मतलब एक तरह से इन्होंने कहा है कि टेंडर के अंदर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है जो नहीं फॉलो हो सकती इनसे। तो एक तो यही वाली रिस्ट्रिक्शन है कि ये ऐसी इनके पास ये शायद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोजल सिस्टम फॉर, यहाँ पे अभी लिखा है ना सी प्रूवन, मतलब इनके पास जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं एक तरह से टेंडर के अंदर, जो गवर्नमेंट जो नेवी ने टेंडर निकाले हैं तो उसके अंदर जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं तो उनके पास सी प्रूवन, मतलब उनके पास प्रूवन फैक्ट होना चाहिए, देखो हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए भी बना सकते हैं। और बस ये है कि इन कंपनी के पास ऐसा नहीं है, तो कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन होगी इनके पास, तो ये ऐसा नहीं बना सकते इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे एक और कंपनी है साउथ कोरिया की डाइवो शिप बिल्डिंग एंड मैरीन इंजीनियरिंग, मतलब एक तरह से यही एक तरह से कंटेंडर बची है टेंडर्स के अंदर। बस ये बताया पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो यहाँ पे लड़ाई चल रही है उसमें ये बताया कि द इंडिजिशन कंटेंट विच हैज़ बीन सेट एट 45% फॉर द फर्स्ट बोर्ड एंड 60% फॉर 6th बोर्ड। बस ये बताया इन्होंने कि यहाँ पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन आई है, मतलब जिसके कारण वो आ नहीं पा रही इंडिया के अंदर, इन्वेस्ट करना से पीछे हट रही है वो। यहाँ पे लिखे एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द सबमरीन्स ऑन द फॉरेन कोलेबोरेटर दो द बोट्स आर टू बी बिल्ट एट एन इंडियन यार्ड। हाँ ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा है 43,000 करोड़ बजट टू हैज़ बीन फ्लैग्ड एज टू लो, मतलब उन कंपनी ने कहा है कि ये बजट कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ाया तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे एक ये बताया, यहाँ पे लिखा है ना ऐसे इन्होंने दो द बोट्स आर टू बी बिल्ट एट एन इंडियन यार्ड, तो इसका इन्होंने बताया कि कहाँ पे बोट्स बनेंगी। इन्होंने बताया कि हाँ बोट्स कौन कौन बना सकता है ये वाली सबमरीन वाली, एक तो है मेजागोन डॉकी यार्ड एंड लिमिटेड MDL और लार्सन एंड टोब्रो विच वी ऑल नो L&T about which there was also news in the yesterday newspapers if you guys remember. So this was all about this news on this page of politics. So let's move to next news from which we have covered this news. So let's move to this news. One second guys. और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है NBCC टू एंटर एविएशन सेक्टर। इसकी NBCC की फुल फॉर्म है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इनको अब ये है कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ये एक तरह से एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक तरह से, क्योंकि ये एक तरह से जब आपको पता है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI है, ये प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा प्राइवेटाइज़ किया जाए ताकि डेवलपमेंट हो सके एयरपोर्ट्स की। तो जैसे इन्होंने अडानी को भी बेचे हैं काफ़ी एयरपोर्ट्स, तो अभी और भी बेचेंगे आगे, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एक तरह से तो फ़ायदा भी है, डेवलपमेंट हो रही है बहुत, एक तरह से ये भी है प्राइसेस वगैरह काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स तो चार्ज ज़्यादा करेंगे मतलब अमाउंट वगैरह जो मतलब पैसेंजर से, तो बस यही है नुकसान एक तरह। तो ये बस NBCC है जो ये एंटर कर रहा है एविएशन सेक्टर के अंदर। तो इन्होंने बस जो इनके PK गुप्ता है, PK गुप्ता चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने बताया बस ये एक तरह से स्टेट रन है, ये उन्होंने एंटर कर रहे हैं, बस इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और फिर एक तरह से इन्होंने तीन पोर्ट्स के अंदर बिड भी लगा दिया, त्रिवेंद्रम, जयपुर एंड गुवाहाटी के अंदर। सो बस ये इनकी डील अभी फाइनल तो नहीं हुई, अभी चल रही है बस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द नेस्ले CG फूड्स टोल्ड टू गो फॉर मेडिएशन। ओके गाइस, मेडिएशन का ये मतलब होता है कैसे, मेडिएशन मतलब एक तरह सेटलमेंट के लिए एक तरह से, हाँ इसका मीनिंग ये है कि जैसे इन्होंने समझ लो नेस्ले एंड CG फूड्स है जो कंपनीज़, इन्होंने अपने एक तरह से अनरिलेटेड बंदे अपॉइंट कर दिए हैं, मतलब जो आपस में दोनों कंपनीज़ के मुद्दे डिस्कस करेंगे, तो वो दोनों को एक सोल्यूशन पे लेके आएंगे, मतलब दोनों का एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मीन्स मतलब एक सोल्यूशन पे आएंगे ताकि इनका जो एक तरह से कोर्ट में केस फाइल किया नेस्ले ने,
तो वो एक तरह से उसका सोल्यूशन निकल के आए सामने। तो कोर्ट में केस ये फाइल किया है कि जो नेस्ले एंड सीजी फूड का ये है कि जो सीजी फूड है उन्होंने वाई नूडल्स बनाई है, WI एंड नेस्ले की जो मैगी है, तो नेस्ले का ये कहना है कि जो वाई नूडल्स है इनका पैकेट का कलर मिलता जुलता है, जैसे लिखे एलेगिंग दैट येलो पैकेजिंग फॉर वाई एक्सप्रेस इंस्टेंट नूडल्स लुक्स डिसेप्टिवली सिमिलर टू द पॉपुलर मैगी ब्रांड ऑफ स्विस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स परफॉर्म। सो जो आपको नहीं पता तो नेस्ले जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, तो बस इन्होंने ये केस फाइल किया है, बस इसमें यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था भाई। तो जैसे इसमें ये न्यूज़ भी अच्छी है, यहाँ पे एक तरह से इसमें काफ़ी सारी टर्म्स नई सीखने को मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे लिखा है, इसके लिए मुझे भी काफ़ी गूगल करना पड़ा, तो बस इसमें थोड़ी सी मेहनत है। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सेट टू नोटिफाई स्पेसकॉम पॉलिसी। स्पेसकॉम मतलब स्पेस कमर्शियल पॉलिसी, मतलब जो स्पेस के रिलेटेड पॉलिसी लेके आने वाली गवर्नमेंट, उसके बारे में बताया कि द गवर्नमेंट इज सेट टू नोटिफाई द मच अवेटेड न्यू स्पेसकॉम पॉलिसी। ऐसे टेलीकॉम होता है, स्पेसकॉम लिख दिया इन्होंने, स्पेसकॉम पॉलिसी दैट विल अंडरलाइन द क्रिटिकल रोल ऑफ low earth orbit LEO. Low earth orbit is the I have discussed I have written this here, that there are two types of systems, and first is geostationary system, satellite system, and the other is geostationary satellite system. Basically the geostationary, first let's see the geostationary, GSO. And GSO is these are kind of satellites which are 36,000 kilometers above the earth, and the world's major existing telecom satellites are put in this area only, means they are around 36,000 kilometers above the earth, means these are controlled from such a long distance from the earth that we all see from the various TV channels, for example, or various telecommunication sites that we see. These are controlled from GSOs, and these are only on fixed position, stationary position, means their position is not changed. Once their satellites are installed and launched and installed in some fixed place, then they remain in that place only. That place does not change. Whereas in the case of NGSO, the place relatively changes whenever with the चेंज इन द अर्थ, मतलब जैसे जैसे अर्थ का चेंज होता है, एक तरह से अर्थ रोटेट करती है, जैसे रिवॉल्व कर दिया, तो साथ साथ में इनकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो ये नई एक तरह से सैटेलाइट्स ये होती हैं 700 से 750 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, मतलब ये काफ़ी पास होती हैं। ये इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि जो एक तरह से जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है नीचे कौन कौन सी कंपनी है। यहाँ पे एक तो बताया एलॉन मस्क की है जो स्पेसएक्स, एंड भारतीय एयरटेल की जो बैग्ड है OneWeb, ये दोनों अब एक तरह से सैटेलाइट के अंदर आना चाहती हैं। क्यों आना चाहती है? क्योंकि ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेंगी, जो मतलब एक तरह से रूरल एरिया के अंदर मेन फोकस है इनका ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने का, मतलब फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेंगी सैटेलाइट्स के थ्रू। वो भी कैसे? लियोज़ के थ्रू एंड मियोज़ के थ्रू। मियोज़ है जो 10,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ है, एंड जो लियोज़ है वो 700 to 1,500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ है। ठीक है गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे बताया ये विल अंडरलाइन द क्रिटिकल रोल ऑफ लियो सैटेलाइट कंस्टेलेशन ऑपरेटर्स इन बूस्टिंग ब्रॉडबैंड कवरेज पार्टिकुलरली इन रूरल इंडिया। एंड आगे ये बताया प्रिपेयरिंग टू लॉन्च हाई स्पीड सैटेलाइट इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 तक आ जाएंगे इनकी सैटेलाइट्स, ये सेट टू लॉन्च, मतलब चाहते हैं ये लॉन्च करना। बाकी और इसमें यहाँ पे बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल नोटिफाई द स्पेसकॉम पॉलिसी वेरी शॉर्टली एज इट हैज़ कंक्लूडेड ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इट्स फॉर्मुलेशन एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज पेंडिंग। में उन्होंने सारे कागज पत्र तैयार कर दिए हैं, बस अब एक तरह से गवर्नमेंट से अप्रूवल यानी अप्रूवल आने की देरी है। ये किसने कहा है? जो आर शख्या है, DDG हैं जो सैटेलाइट इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस said that a setcom was a new term for me also, that there might be a new term for some of you also. Its full form is satellite communications, means the satellite communication webinar के अंदर इन्होंने ये बताया, बस उसने बस ये बताया कि very significant role that no NGO satellite system are as in LEOs and MEOs are likely to play in India। बस इसमें बेसिकली यही था गाइज इस न्यूज़ के अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं था गाइज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइज। हाँ जी गाइस, इसमें एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये है कि HDFC बैंक के जो MD है शशिधर जगदीशन, इन्होंने एम्प्लॉयज़ को कहा है कि HDFC बैंक विल कम बैक विद अ बैंग इन कार्ड्स बिजनेस टैप टेक एज। मतलब क्योंकि जैसे आपको पता है दिसंबर से जो अभी अगस्त तक इनका बैन लगा हुआ था इनके क्रेडिट कार्ड इशू करने के ऊपर, बिकॉज कोई रीज़न था कि उन्होंने, हाँ मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अब गाइस अगर नहीं याद तो किसी को तो कल वाली वीडियो सुन सकते हो, वहाँ पर डिस्कस्ड है ये केस। तो बस यहाँ पे है कि ये एक तरह से मतलब कह रहे हैं हम पूरी जोर लगा के आएंगे ताकि हम हमारा शेयर जो लूज़ हुआ है तो एक तरह से वापस आ जाए। तो उन्होंने ये भी बताया, मतलब इसमें ये भी बताया गया इस न्यूज़ में
कि जो इनका स्टॉक है जो इस न्यूज़ के बाद 2.3% से अप गया था, बट जब डे क्लोज हुआ 3 PM पे तब ये 0.13% पे ही मतलब क्लोज हो गया, मतलब हाईएस्ट इस पे क्या था, क्लोज इस पे हुआ। ठीक है गाइज, उस इसमें ये बताया कि बस ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ है जो जैसे अल्ट्राटेक, आपको पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो 2-3 वीडियोस देखी हैं तो हमने उसमें कवर किया था, जो एक ग्रासिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बारे में न्यूज़ आई थी। तो उसमें भी एक कंपनी इन्वेस्ट करी थी, ऐसा कुछ था। तो ग्रासिम के बारे में न्यूज़ ये थी कि उसके जो हमने सॉरी उसके बाद न्यूज़ नहीं हम डिस्कस करेंगे, न्यूज़ हमने पहले कर ली है डिस्कस, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अल्ट्राटेक के इन्होंने कहा है कि अल्ट्राटेक प्लान्स टू इन्वेस्ट 6500 करोड़ ऑन एक्सपेंशन। तो अल्ट्राटेक ये था कि अल्ट्राटेक की सब्सिडरी है ग्रासिम, एंड ग्रासिम इज़ द सब्सिडरी ऑफ एबीजी। एबीजी इज़ आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने शेयर होल्डर्स को ये कहा है। तो बस ऐसे मैंने चौथा चार्ट बनाया, एबीजी, ग्रासिम और अल्ट्राटेक, मतलब एक तरह से ये डाउन फ्लो चार्ट है, मतलब पहले ऊपर मेन होल्डिंग कंपनी, फिर सब्सिडरी। अल्ट्राटेक प्लान्स टू इन्वेस्ट क्लोज 6500 करोड़ इन ग्रोथ प्लान टू इंक्रीज कैपेसिटीज बाय 19.8 मिलियन टन इन फाइनेंशियल ईयर 22 and 23। बस इन्होंने कहा है कि इट इज़ अ थर्ड, यहाँ पर लिखा है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द लेटेस्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन अल्ट्राटेक्स कैपेसिटी विल ग्रो टू 136.25 मिलियन टन्स पर एनम, रीइंफोर्सिंग इट्स पोजीशन एज द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ चाइना। मतलब चाइना से बाहर अगर देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक बन जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पे इस न्यूज़ में गाइस यही था। गाइस नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया जो अपकमिंग आईपीओ है वो एक तरह से $160 बिलियन के अराउंड मार्केट कैप ऐड कर सकते हैं। ये किसने कहा है, क्रेडिट सूजे, इन्होंने CS लिखा है क्रेडिट सूजे को। क्रेडिट सूजे इज इन्वेस्टमेंट बैंक आल्सो, देन दिस इज बेसिक न्यूज़, सो वी विल वॉन्ट डिस्कस इन डिटेल। सो गाइस जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इस पेज पे है, बाकी हम पिछले डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो यहाँ पे है कि RBI स्टैंडर्डाइजेज रूल्स फॉर मेंटेनिंग बैंक लॉकर्स, मीन्स RBI ने बस ये एक तरह से नए रूल्स निकाले हैं बैंक लॉकर्स के लिए। पता ही होगा आपको, बैंक के लॉकर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग ही अपने ज्वेलरी वगैरह ही ज़्यादा रखते हैं ऐसे, या कोई कीमती कागज़ वगैरह रखते हैं, और तो कुछ नहीं रखता वहाँ पे कोई। यहाँ पे है बैंक्स आस्क टू मेंटेन ब्रांच वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंट लॉकर्स एंड वेट लिस्ट, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन अलॉटमेंट। यहाँ पे लिखा है बैंक्स have time to comply with the new norms till Jan 1, 2022 and have to renew locker agreements with existing locker customers by Jan 23। बस इसमें बेसिकली एक तरह से न्यूज़ काइंड ऑफ थिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा कोई ऐसे कोई वो नहीं चाहिए, फाइनेंस वाली चीज़ नहीं ज़्यादा कोई, बस इसमें यही था। क्योंकि इसमें इन्होंने इस न्यूज़ में ये बताया कि पोस्टमैन मोस्ट वैलिड इंडियन सास स्टार्टअप एट $5.6 बिलियन। तो अगर आपको नहीं पता सास क्या होता है, सास इज बेसिकली इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब इट काइंड ऑफ सर्विसेज टाइप ऑफ टेक्निक, इट्स फुल फॉर्म इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे है कि जो एक तरह से सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सॉफ्टवेयर बनाती है ये कंपनी है, पोस्टमैन है। इन्होंने बताया कि इट हैज़ रेज $225 मिलियन लेड बाय एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर इनसाइड पार्टनर्स। मतलब जो एक इन्होंने इन्वेस्ट किया है, आगे 2 कंपनी और ने इन्वेस्ट किया है। एक तो है कोटे मैनेजमेंट एंड सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर मैरी मीकर्स बॉन्ड कैपिटल एंड बैटरी वेंचर, मतलब थी एक तरह से 4 कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, एक इनमें से 3 नहीं है और एक तो पुरानी इनसाइड पार्टनर्स हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो एक ये है कि ये एक तरह से वो बन गया है फॉलोइंग द मेकिंग द मोस्ट वैल्यूएबल सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया, ओवरटेकिंग ब्राउजर स्टैक which was valued at $4 billion in June after bond capital led to $200 million funding round in the company। बस इसमें ये एक तरह से नॉलेज वाली न्यूज़ ही है बस। तो बस गाइस ये था इस वाले न्यूज़पेपर का एनालिसिस। सो अगर आपको इसमें से है कि कोई न्यूज़ ऐसे छोड़ दी है जो आप चाहते हो कि आपको एक्सप्लेन की जाए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। सो गाइस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड guys make sure to like the video and subscribe the channel if you like the video and if it helped you in any way or the other, and share it with your friends and family who are interested in finance or economic analysis or who don't know anything about this and it might interest their knowledge. Okay guys, thank you, bye bye.